KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nolakha and welcome back to our 40-day crash course for your board exams. In this course, we are going to cover entire syllabus of history and political science within 40 days. Yes, my friends. और इतना ही नहीं, we are going to discuss previous year questions, we are going to practice mock questions and we are going to discuss expected questions as well. So, अगर आपने अभी तक हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, don't worry guys, check out the description box. उसमें आपको हमारी previous lectures की पूरी playlist का link मिल जाएगा so that you are updated with all the syllabus and आप हमारे साथ इस 40 डे के क्रैश कोर्स में अभी तक बने रहे और जुड़े रहे. एंड इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर केपी क्लास एग्जाम कम्युनिटी, डोंट वरी गाइस, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सो दैट यू कैन बिकम पार्ट ऑफ आवर केपी क्लासेस कम्युनिटी. एंड इस कम्युनिटी का पार्ट जब आप बनेंगे, सो what will you get? You will be getting daily quizzes, informative videos, current affairs, latest news regarding CUET and board examination as well. So, अगर अभी तक आप पार्ट नहीं बने हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे चैनल्स का पार्ट बन सकते हैं. Follow us on Instagram as well. So, to begin with, if you want study notes, class notes and mind maps of all these lectures, what you can do, you can download our app which is KP Classes Exam Prep app. और अगर आप iOS यूजर हैं तो this app is available as Class Plus. So जब आप लॉग इन करेंगे, आप अपने क्रेडेंशियल्स डालेंगे, फ्री मटेरियल पे जब क्लिक करेंगे, अपना कोर्स सिलेक्ट करिए. कोर्स सिलेक्ट करने के बाद what document and test section में, document section में you will be getting all these lectures, study notes and mind maps, and in the test section you will be getting free sample papers. Yes my friends, absolutely free sample papers for your boards so that you can practice questions and you can practice papers. पूरा 3 घंटे के पेपर को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं which is absolutely free of cost. So देखते ही देखते we have completed all these chapters. पूरा थीम 1 हमने कंप्लीट कर दिया है. थीम 1 इन इंडियन हिस्ट्री हैज बीन कंप्लीटेड. थीम 2 की बात करें, सो इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर्स, जिसमें हमने अल बरूनी और इब्न बतूता के बारे में डिस्कस किया था. सो लेट्स बिगिन विद पार्ट 2. And before that, I have a great news for all of you guys that you can boost your CVT preparation with us. आप हमारे साथ जुड़ के अपनी CVT की प्रिपरेशन को भी बूस्ट कर सकते हैं by purchasing our courses which is just 4,999. Yes my friends, ये कोर्स आपको सारी स्ट्रीम्स में अवेलेबल है, whether you are from humanities, commerce or science batch. In just 4,999 you will be completing all your domains including your language, including your general test as well. And अगर आप अपनी जीटी की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो in just 2,999 you can be with us, और जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं. सो मैम, इस कोर्स में मिलेगा क्या? आपको हमारी तरफ से सारी पॉसिबल हेल्प मिलेगी इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज बुक्स, ऑल द पीडीएफ्स यू विल बी गेटिंग, एंड दीज बुक्स हैव बीन डिजाइन्ड बाय आवर टीचिंग फैकल्टी. हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए ये बुक्स प्रिपेयर करी हैं ताकि आप अपनी सीवीटी की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके. दीज बुक्स विल बी having the comprehensive theory of all these subjects, whether it is political science, economics, history, socio, GT, language and psych. Along with, you will be having more than 1,200 MCQs, including previous year questions of last 4 years. Yes, my friends, ये सारी books की hard copies आपको available होंगी if you purchase, if you buy our courses, which is absolutely cost effective. बहुत ही cost effective हमने आपके लिए ये डिजाइन किया है. So, देर किस बात की, ये कोर्सेज आप हमारे ऐप के थ्रू परचेज कर सकते हैं. बूस्ट योर CUET प्रिपरेशन. सो लेट्स बिगिन विद दिस लेक्चर. इब्न बतूता और इंडियन सिटीज के बारे में इन्होंने क्या देखा था. सो ही फाउंड इन सिटीज इन द सबकॉन्टिनेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज. सो जिन लोगों के पास अगर रिसोर्सेज हैं, स्किल हैं, तो सिटीज में वो काफी अच्छी मेहनत करके प्रोग्रेस कर सकते हैं. तो बेसिकली सिटीज क्या थी? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था.
यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा थी लेकिन उतना ही ये प्रॉस्परस थे. They were disrupted during the wars and the invasion. लेकिन wars और वॉर इन्वेजन के दौरान इन सिटीज पे कहीं ना कहीं एक भारी इम्पैक्ट पड़ा था. इनके अकाउंट में बोला गया, in many cities they were crowded and bright and colorful markets with full of variety of goods. Write down in the comment section what was the name of the book written by Ibn Battuta. उनके अकाउंट हमें कौन सी किताब में मिलते हैं? He described Delhi as a vast city. So Delhi पे फोकस करते हुए उन्होंने बोला कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा थी and it was one of the largest cities in India. बाजार were not only the places of economic transaction but एक हब भी था सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज का. तो आज के डेट में भी हम देखते हैं बाजार मार्केट्स में कितनी ज्यादा भारी मात्रा में सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज, ट्रेडिशंस और ये रिचुअल्स फॉलो होते हैं और परफॉर्म किए जाते हैं. काफी बाजार के अंदर मॉस्क भी था और टेम्पल भी था. सो बोथ ऑफ द दीज मॉन्यूमेंट्स वर कोएग्जिस्टिंग विद ईच अदर एंड दीज वर स्पेसेस फॉर पब्लिक परफॉर्मेंसेस. यहाँ पे कौन परफॉर्मेंस करता था? डांसर्स एंड सिंगर्स. इब्न बतूता ने नोट किया दैट द सिटीज ऑब्टेन इट्स वेल्थ फ्रॉम द विलेजेस. तो विलेजेस में जो वेल्थ होती थी, सिटीज कहीं ना कहीं उसका फायदा उठा के वहां पे वेल्थ करते. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वजह से यहाँ पे विलेजेस पे काफी ज्यादा एग्रीकल्चर परफॉर्म हुआ, जिसकी वजह से सिटीज को भारी मात्रा में, क्योंकि वो प्रोड्यूस सिटीज में जाके फार्मर्स सेल करते थे, इस वजह से सिटीज वर बिकमिंग प्रॉस्परस. उन्होंने ये भी बोला कि देयर वाज अ ग्रेट डिमांड फॉर टेक्सटाइल्स. एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कॉटन क्लॉथ, मसलिन क्लॉथ, सिल्क, ब्रोकेड एंड सैटन. ये जो कपड़े हैं इनकी काफी भारी मात्रा में डिमांड करी गई थी. और उन्होंने फर्दर ये भी बोला है दैट देयर वर सर्टेन वेराइटीज ऑफ फाइन मसलिन जो बहुत एक्सपेंसिव था और जो नोबल्स और रिच लोग थे वही इसको अफोर्ड करके पहन सकते थे. तो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंशिएशन भी मिलता है बिटवीन हैव्स एंड द हैव नॉट्स इन द सोसाइटी. अब एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज अ 4 मार्कर क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है कि डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन प्रेजेंटेड बाय इब्न बतूता. तो उन्होंने देखा कि ये कम्युनिकेशन है, लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे. So he was amazed by the postal system, through the postal system, और उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. उलुक which was known as the horse post and दावा which was known as the foot post. So ये merchants को माना जाता था कि merchants जो traders थे they use these uluk and दावा which was horse post and the foot post इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस पे था, और डिस्पैच गुड्स और सर्विसेज को कहीं ना कहीं शिप करने के लिए ये सिस्टम यूज होता था. अब बात करेंगे फ्रैंकोस बर्नियर की. ही वाज अ डॉक्टर विथ अ डिफरेंस. सो लास्ट हमारा ट्रैवलर हु इज फ्रैंकोस बर्नियर, ये एक फ्रेंच ट्रैवलर थे एंड ही वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ चुका है in none other than CUET examination में. तो primarily he was a physician, a doctor. तो as a physician ये माने गए थे कि he is a primarily a doctor. Then इनका secondary profession was he was a philosopher and historian. तो ये मुगल एम्पायर के दौरान आए थे. He was contemporary to मुगल एम्पायर. और अपॉर्चुनिटीज के लिए कि अब मैं अपने प्रोफेशन में थोड़ा एक्सपैंड करना चाहता हूं तो मुझे कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं. तो 12 साल, लगभग 12 साल ये इंडिया में रहे. ठीक है. दारा शिकोह हु वाज द ब्रदर ऑफ औरंगजेब, तो उनके भाई थे, तो उनके फिजिशियन थे. एंड ही इज आल्सो द एल्डर सन ऑफ एम्परर शाहजहां, एन इंटेलेक्चुअल साइंटिस्ट विद Danishman Khan, an Armenian noble at the Mughal court. He travelled to different parts of the country, wrote accounts based on his own observation, compared the social condition in India with the situations in Europe. तो उन्होंने क्या करा? इंडिया और फ्रांस की सोशल सोसाइटी को कंपेयर करना शुरू कर दिया था. उन्होंने अपना काम किसको डेडिकेट करा? लुई 14 को, हु वाज एट दैट टाइम किंग ऑफ फ्रांस. तो उस टाइम पे लुई 14 जो थे, सारा काम इन्होंने अपना लुई 14 को क्या किया? डेडिकेट करना शुरू कर दिया. His works were published in France in 1771. उन्होंने इंग्लिश, डच लैंग्वेज, जर्मन एंड इटालियन जैसी लैंग्वेजेस में अपने काम को ट्रांसलेट करना शुरू करा ताकि सारे
कंट्रीज के लोग वो एक्सेस कर सके और इनके काम को रिकॉग्नाइज कर सके। एंड लेटर हिज अकाउंट वो रीप्रिंटेड फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स एज वेल। अब इनकी बात करें लैंड ओनरशिप के बारे में, इन्होंने कुछ बोला था, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोप। क्या डिफरेंस था? लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन इंडियन सोसाइटी, कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स, इंडिया में प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, उनके पास लैंड, उनके पास प्राइवेट ओनरशिप, वो नहीं खरीद पा रहे या उनके पास एक्सेस नहीं है। So crown ownership of land was harmful for both state and its people. Crown ownership मतलब राजा के द्वारा उस लैंड का क्या होना, मालिक होना। So who was the owner of the land? It was crown, यानी कि kings. They used to have access on the entire land. तो कहीं ना कहीं जो उस लैंड पे क्या होने वाला है उसका डिसीजन सिर्फ किंग ही लेंगे और प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई से नहीं होगा। He thought that the Mughal emperor owned all the land and distributed among his nobles. Nobles क्या थे? उनके खास लोग थे। तो उनको लगा कि जो मुगल एम्परर है ये सारा लैंड अपने नोबल्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। So he argued that land under the crown ownership could not pass on to their children. So they were averse to any long-term investment in the sustenance and the expansion of production. तो कोई लंबा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि ये लैंड का डिसीजन नोबल्स ही लेंगे और नोबल्स एक्सपेंशन क्या पता करें या नहीं करें। So this absence of private property prevented the emergence of class of improving land laws as, और ये चीज कहीं ना कहीं यूरोप में देखने को मिली जिसकी वजह से सोसाइटी एग्रीकल्चर साइड में इंप्रूवमेंट था। तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है बिटवीन इंडियन लैंड एंड यूरोपियन एक्सेस ऑफ लैंड। So it had ruined the agriculture, oppressed the peasants and the living standards of all the sections in the society. और यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी विच मीन्स रूल्ड बाय फ्यू पीपल वो देखने को मिली। तो उस लैंड का क्या करना है, वो सिर्फ फ्यू पीपल के हाथ में था एंड वो अपना सारा फोर्स लगाएंगे पेजेंट्स को एक्सप्लॉइट करने में। तो ये कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन देखने को मिला था। अब बात करेंगे हिज डिस्क्रिप्शन ऑन मुगल एम्परर एंड हिज सब्जेक्ट्स। तो इन्होंने मुगल एम्पायर को बोला था द किंग ऑफ बेगार्स एंड द बारबेरियंस। Its cities and towns were ruined, contaminated with ill air, and its fields were overspread with the bushes and full of pestilential marshes. So इन्होंने देखा ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं, बिकॉज ऑफ द क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। तो राजा के पास ओनरशिप थी जो वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने नोबल्स को, और जिन्होंने अपने लैंड पे नहीं ध्यान दिया तो वहां पे ये जो लैंड है वो कहीं ना कहीं डिट्यूरेट हो रहा था। द क्वालिटी ऑफ द लैंड वाज डिट्यूरेटिंग। He said that there was the practice of crown ownership of land and no private ownership of the land or private property, but none of the Mughal official documents show that the state was the sole owner of the land. तो कहीं ना कहीं ये बात कॉन्ट्रैक्ट कर रही है क्योंकि मुगल अकाउंट्स के द्वारा ये नहीं लिखा गया कि सारा लैंड से स्टेट के पास था, उसमें लिखा था कि कहीं ना कहीं प्राइवेट ओनरशिप भी दी गई थी लोगों को। According to the official chronicle of Akbar's reign, अबू फजल जिन्होंने काफी क्रॉनिकल्स लिखी हैं अबाउट the court of Akbar, so he collected only the remunerations from the people for the protection given by the state and no rent was collected. तो उनकी अकाउंट के द्वारा हमें ये पता चलता है रेम्यूनरेशन मतलब पैसे इन्होंने कलेक्ट करे लेकिन रेंट नहीं हुआ था। So he regarded the remuneration as a land revenue since it was very high sometimes. So land के पास एक सोर्स जो था पैसे कमाने का, it was none other than the remuneration. Then comes the idea of oriental despotism. So the description of land ownership influenced the Western theorists from the 18th century onwards. For instance, French philosophers Montesquieu used Bonnier's account and developed the idea of oriental despotism. और ये आइडिया कहीं ना कहीं एशिया में भी इंक्रीज हुआ। देयर वाज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ऑल पीपल एक्सेप्ट द किंग एंड नोबल स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एज वेल। सो एक डिस्पोटिज्म यानी कि कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी का डिक्टेटरशिप हमें देखने को मिली थी जो कहने को डिक्टेटरशिप नहीं थी बट एक डिस्पोटिज्म के रूप में हमें इंक्रीज होता हुआ देखा। सो हिज डिस्क्रिप्शन ओकेजनली हिंट एट मोर कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी। आर्टिसंस के पास कोई इंसेंटिव नहीं था अपना क्वालिटी इंप्रूव करने का, अपना प्रोडक्शन इंप्रूव करने का, प्रॉफिट्स का था स्टेट के पास जाता था, और मैन्युफैक्चरर्स जो प्रोड्यूसर्स थे वो डिक्लाइन हो रहे थे
उसी के साथ साथ Bernier he agreed the vast quantities of the world's precious metal flowed into India as manufacturers were exported in the exchange of gold and silver. उन्होंने ये भी मेंशन करा that there is a prosperous merchant community engaging in the long distance trade. So क्या प्रॉब्लम्स आई? दीज वर द प्रॉब्लम्स. ये सोशल रियलिटी का काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिली. तो प्रॉब्लम्स क्या थी? आर्टिसंस को कोई इंसेंटिव्स नहीं मिला, तो उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं था इंप्रूव करने का. मैन्युफैक्चरर्स का जो नंबर था वो डिक्लाइन हो गया. एंड उसके टाइम पे जो प्रेशियस स्टोन है वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहे थे. अब बात करते हैं मुगल टाउन्स की. 17th सेंचुरी में अबाउट 15% पॉपुलेशन टाउन्स में रहने लग गए थे. He described Mughal cities as the camp towns which were dependent upon the imperial patronage. यहाँ पे सारे टाउन्स थे. यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग होती थी, ट्रेड भी होता था. कुछ पोर्ट टाउन्स थे, कुछ सैक्रेड सेंटर्स, कुछ पिलग्रिमेज टाउन जहाँ पे सिर्फ यात्रा करी गई थी. So these existence of these towns indicated the prosperity of these communities. And they had a strong community or king ties were organized on their own caste and co-occupation. Western India की बात करें तो यहाँ पे इनको महाजन्स का रूप का नाम दिया गया and chief उनको बोला था सेठ. तो उस टाइम पे अहमदाबाद जैसे सेंटर्स वर इंक्रीजिंग और वहां के चीफ मर्चेंट को नगर सेठ का दर्जा दिया गया था. अब बात करेंगे स्लेवरी का क्या था कि और किसने स्लेवरी के बारे में मेंशन किया. तो स्लेव्स ओपनली बाजार में बिकते थे. यस, स्लेवरी वाज देयर लाइक एनी अदर कम्युनिटी. स्लेव्स वर एक्सचेंज एज गिफ्ट्स. सो इब्न बतूता ने स्लेवरी के बारे में लिखा है हॉर्सेस, ही परचेज कैमल एंड स्लेव्स. तो स्लेव्स को भी परचेज किया गया था एज अ गिफ्ट फॉर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक. Some female slaves in the service of Sultan were experts in music and dance. तो कुछ फीमेल स्लेवरी के बारे में भी हमें देखा गया. तो वो क्या करते थे? They used to do music and dance for the Sultan, and they were also used to keep a watch on his nobles by the Sultan. तो फीमेल स्लेव्स को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई किया गया था नोबल्स के साथ, ताकि नोबल्स की कुछ भी अगर हरकतें हैं तो वो फीमेल स्लेव्स ऑब्जर्व करके किंग को रिपोर्ट करे. And domestic labor के लिए भी यूज हुआ. He noted that men and women slaves carried the palkis and the dolas. So price of slaves, particularly female slaves required for domestic labor, was very low. So जिसके अकॉर्डिंगली उनको खरीदा जाता, जिस भाव में उनको खरीदा जाता था, वो प्राइस काफी ज्यादा लो था, एक्सेप्टेबल नहीं था. सती और वुमेन लेबरर्स जैसी प्रैक्टिसेस भी हमें देखने को मिली. बर्नियर ने सती के बारे में लिखा था. ही मेंशन दैट सम वुमेन सीम टू एम्ब्रेस द डेथ चीयरफुली. एंड कुछ लोगों को फोर्स किया गया. तो कुछ वाइफ्स ने अपने हस्बैंड की डेथ को एक्सेप्ट किया एंड दे वर रेडी टू गिव देयर लाइफ. बट कुछ वुमेन को फोर्सफुली डेथ फेस करनी पड़ी. They also noticed the child Satan, which a 12-year-old, a young widow, sacrificed. So ऐसे भी हमें इंस्टेंसेस देखने को मिले थे जो बर्नियर ने अपने अकाउंट में मेंशन किया है. वुमेन लेबर बहुत क्रूशियल था एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में. Even they participated in commercial activities. Therefore, it seemed unlikely that women were confined to the private spaces of their homes. तो ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ domestic sphere में भी थी. They were open and they were engaged in non-domestic activities as well, like commercial activities and non-agricultural production. This was all about this chapter. I hope you like this video. So दोनों ही lectures में हमने तीनों travelers के accounts को एकदम complete कर दिया है. So I'll see you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye. And again, I'm reminding you, hit the bell icon so that subscribe to our channel so that you can get all the updates, all the notification of the upcoming lectures, and you can purchase these courses just 4,999 to boost your CVT preparation, so that you can boost your CVT preparation and get into your dream college as well. So I'll see you in the next lecture. Thank you guys. KP classes dedicated to excellence.